ہم نے اپنی یہ کمین گاہ بدل دی اور دیودار کے جنگل والی پہاڑیوں میں ایک خفیہ ہائیڈ آؤٹ میں آ گئے. یہاں ہمارے کچھ کشمیری عسکریت پرست مجاہد پہلے سے موجود تھے. کمانڈو لیڈر شیروان ان کا کمانڈر تھا. یہ جگہ مقبوضہ کشمیر میں موجود بھارتی سیکیورٹی فورس کی مین سپلائی لائن والی سڑک سے زیادہ دور نہیں تھی. سری نگر شہر کے مسلمان کشمیریوں پر بھارتی فوجی بے پناہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. ذرا سی شک پر کشمیری مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دیا جاتا، فائرنگ کر کے نہتے شہریوں کو شہید کر دیا جاتا. اس کے جواب میں ہمارے کشمیری حریت پرست مجاہد بھی گھات لگا کر بھارتی فوجیوں پر حملے کر کے انہیں جہنم میں پہنچا رہے تھے. ہمارا کام اپنے حریت پرست کشمیری مجاہدین سے ذرا مختلف تھا. یہ مجاہد محاذ پر بلکہ میدان میں آ کر آزادی کشمیر کی جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ ہم میدان جنگ کے پیچھے رہ کر دشمن کی فوجی تنصیبات کو تباہ کر رہے تھے. فوجی کنوائیوں پر گھات لگا کر اٹیک کرتے اور ایمونیشن اور سپلائی کے ٹرکوں کو راکٹ لانچروں سے اڑا دیتے. ہمارا ایکشن کمانڈو ایکشن تھا. ہمارا ایک کامیاب کمانڈو ایکشن دشمن کی فوج کی ایک بریگیڈ کی تباہی جتنا نقصان پہنچاتا تھا. نئی پناہ گاہ میں آنے کے بعد کشمیری کمانڈو لیڈر اور ہمارا کمانڈر شیروان دوپہر کے وقت ایک خفیہ جگہ پر لے گئے. یہ جگہ ایک پہاڑی کے شگاف میں زمین کھود کر زمین کے نیچے تھی. یہاں کمانڈو ایکشن میں کام آنے والے نقشے، دوربینیں اور ایک دو انتہائی سیکرٹ فائلیں رکھی ہوئی تھی. ان سیکرٹ فائلوں میں وہ رپورٹیں تھیں جن میں کشمیر میں موجود بھارتی فوجوں کی مختلف ریجمنٹوں کے کمانڈروں کے نام اور حلیے اور بعض کی تصویریں بھی تھیں. یہ ایک چھوٹی سی کوٹڑی تھی جس کی دیوار کی طاق میں بیٹری سے روشن ہونے والی ایک لالٹین روشن تھی. کمانڈو شیروان نے یہ لالٹین لکڑی کے بکس کے اوپر رکھ دی. اس بکس کے ارد گرد 4 سٹول پڑے تھے. ہم سٹولوں پر بیٹھ گئے. کمانڈر شیروان نے ایک نقشہ کھول کر بکس پر پھیلا دیا. یہ درمیانے سائز کا نقشہ تھا جو سفید کاغذ پر ہاتھ سے بنایا گیا تھا. اس پر جگہ جگہ نیلے اور سرخ رنگ کے نشان لگے تھے. کمانڈو شیروان نے نقشے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، میرے بھائی یہ ہندوستان کی 3 جنوبی ریاستوں کا نقشہ ہے، تمل ناڈو، راجستھان اور آندھرا پردیش. کیا تمہیں بھارت کے ان صوبوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے ان کے نام ضرور سنے ہیں مگر میں یہاں نہیں گیا. کمانڈو شیروان نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہ بھارت کے شمال مغربی صوبے راجستھان کا ایک اہم مقام بلارا ہے. ابھی کمانڈو شیروان نے اپنا جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ اچانک 2 کشمیری کمانڈوز اندر داخل ہوئے. ایک اٹینشن ہو کر رائفل لیے دروازے میں کھڑا رہا، دوسرا کشمیری زبان میں بڑے تیز تیز لہجے میں باتیں کرنے لگا. کمانڈو شیروان ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا. اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، میرے ساتھ آؤ. ہم زیر زمین تہ خانے سے جلدی جلدی باہر نکلے. کمانڈو شیروان نے اپنے باڈی گارڈ سے اردو میں پوچھا، کمانڈو جہانگیر بٹ کہاں ہے؟ اس نے سینے سے لگائی مشین گن پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، جہانگیر بٹ پڑال کے مجاہدین کے مورچے میں ہے. میں نے کمانڈو شیروان سے پوچھا، کیا بات ہے کمانڈر؟ اس وقت ہم اپنی ہائیڈ آؤٹ کے باہر چنار کے بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑے تھے. کمانڈو شیروان نے غصے میں اس طرح سانس لیا کہ اس کے منہ سے پھنکار کی سی آواز نکلی. کہنے لگا، پڑال کے پہاڑی گاؤں میں بھارتی فوجیوں نے حملہ کر کے مکانوں کو نظر آتش کر دیا ہے. 4 مجاہد شہید ہو گئے ہیں. بھارتی فوجی ایک کشمیری مجاہد اور گاؤں کی 2 مسلمان لڑکیوں کو پکڑ کر لے گئے ہیں. اتنے میں کمانڈو جہانگیر بٹ بھی آ گیا. کمانڈو شیروان نے اسے پوچھا، بھارتی فوجی ہماری لڑکیوں کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ جہانگیر بٹ کہنے لگا، مجھے جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق سپاہی ہمارے ایک مجاہد اور گاؤں کی 2 لڑکیوں کو اچھویکری والے فوجی کیمپ کی بیرکوں میں لے گئے ہیں. کمانڈو شیروان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھیں. اس نے اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے دباتے ہوئے جہانگیر بٹ سے کہا، اسی وقت اچھویکری والی بھارتی فوجی کیمپ کی بیرکوں میں جاؤ اور اپنے مجاہد اور دونوں لڑکیوں کو وہاں سے نکال کر لاؤ. اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس کے ساتھ جاؤ گے، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو. یہ کہہ کر کمانڈو لیڈر شیروان ہائیڈ آؤٹ کے اندر چلا گیا. جب میں اور کمانڈو جہانگیر تیاری کر کے ہائیڈ آؤٹ کے آگے سے گزرے تو ہمیں کشمیری کمانڈو لیڈر شیروان کی اندر سے تیز تیز آواز سنائی دی. وہ ٹرانسمیٹر پر اپنی زبان میں کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا. ہم تقریباً دوڑتے ہوئے ہائیڈ آؤٹ کے آگے سے گزرے. جہانگیر بٹ نے بھارتی فوجی کیمپ کی بیرکیں دیکھی ہوئی تھی. ہم ایک آسان پہاڑی راستے سے گزر کر آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسی ٹیلے کے دامن میں پہنچ گئے جہاں یہ فوجی کیمپ تھا. ہم سامنے والے ٹیلے کے نشیب میں آ گئے. جہانگیر بٹ کا خیال تھا کہ جہاں نشیب میں کوئی مشین گن کا مورچہ ضرور ہوگا. ہم نے اچھی طرح دیکھا کہ وہاں کوئی مشین گن پوسٹ نہیں تھی. اصل میں یہاں بھارتی فوج کی زیادہ نفری نہیں تھی. یہ ایک طرح کا ٹرانزٹ کیمپ تھا. آمنے سامنے 2 پکی بیرکیں تھیں. درمیان میں ایک طرف ایک فوجی ٹرک اور ایک جیپ کھڑی تھی. ایک سنتری ان کے قریب ہی پہرا دے رہا تھا. ہمیں کشمیری مجاہد اور کشمیری لڑکیاں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. میں نے جہانگیر بٹ سے پوچھا، کہیں ہم غلط ٹارگٹ پر تو نہیں آ گئے؟ جہانگیر بٹ نے کہا، نہیں، ہمارے جاسوس نے گرفتار کشمیری مجاہد کی جیپ کو اسی کیمپ میں جاتے دیکھا ہے. دونوں دیہاتی کشمیری لڑکیاں بھی اسی جیپ میں تھیں. ہم جھاڑیوں کے پیچھے چلتے بیرکوں کے اوپر نشیب میں ایک ایسی جگہ پر آ گئے جہاں سے ہمیں کیمپ کے باہر مشین گن پوسٹ صاف نظر آئی.
जहांगीर भट्ट कहने लगा, मैं बैरक की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ। वो जाने ही लगा था कि सामने वाली बैरक से 2 संतरी, एक कश्मीरी मुजाहिद और लड़कियों को लेकर बाहर निकले। लड़कियों के हाथ खुले थे, कश्मीरी मुजाहिद के हाथ पीछे बंधे थे। जहांगीर भट्ट ने आहिस्ता से कहा, ये हमारा मुजाहिद वानी है, लड़कियां उसके गाँव की हैं, ये उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। मेरी नजरें भारतीय फौजियों पर जमी थी। वो कैदियों को सामने वाली बैरक में ले गए। जहांगीर भट्ट ने मुझे इशारा किया। ये इशारा एकदम से अटैक करने का था। हमने पहले ही स्कीम बनाई थी कि अचानक ग्रेनेडों से हमला करके स्टेन गन के फायर की बौछार, जिससे कैंप में अफरा तफरी फैलाई जाए और अपने आदमियों को निकाल कर ले जाएं। हमारे पास 12-12 ग्रेनेड थे। अचानक कैंप में धमाका हुआ। ये मार्टर गोले का धमाका था जो कैंप के ऐन दरमियान में उन फौजियों पर गिरकर फटा जो बैरक से बाहर आ रहे थे। उनके परखचे उड़ गए। उसके साथ ही कैंप पर मार्टर गोले बरसने लगे और पोस्ट तबाह हो गई। जहांगीर भट्ट बोला, हमारे मुजाहिद सामने वाली टेकरी पर पहुंच गए हैं, ये अच्छा हुआ है। उसके साथ ही हमने भी ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। हमारे पहले 2 ग्रेनेड गन पोस्ट पर गिरकर फटे और पोस्ट तबाह हो गई। बैरकों में से भारतीय फौजी गोलियां फायर करते और स्टेन गनों की बौछारें मारते बाहर निकल आए, मगर मुजाहिदीन की मार्टर गन का फायर मुसलसल आ रहा था। इंडियन फौजी फायरिंग करते अकबी बैरक की तरफ दौड़े। वो हमारी जद में थे। हमने स्टेन गन के ब्रस्ट फायर करके उन्हें खाक और खून में नहला दिया। सामने के टीले की जानिब से मुजाहिदीन के अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठे। उसके साथ ही मुजाहिदीन को हमने टीले के नशेब से दौड़ दौड़ कर नीचे कैंप की तरफ आते देखा। इतनी देर में कैंप की इंडियन फौज की नफरी ने पोजीशनें संभाल ली थी। जब हमने उन पर पीछे से गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी तो वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। अब हम भी ढलान से उतरकर कैंप की अकबी बैरक की दीवार की ओट में आ गए। सामने की जानिब से मुजाहिदीन की कंपनी भी अल्लाह अकबर के नारे लगाती नीचे आ गई। इस कैंप में भारतीय फौज की बहुत थोड़ी नफरी थी। जितने डोगरे सामने आए उन्हें खत्म कर दिया गया। जो फरार हो गए हों तो हम कुछ नहीं कह सकते। कश्मीरी मुजाहिदीन भी हम में आकर मिल गए। हमने अपने मुजाहिद और दोनों लड़कियों को बैरक से निकाल कर आजाद करा लिया। यहाँ एक बैरक में असलहे का थोड़ा सा जखीरा था, उसे उड़ा दिया गया। फौजी जीप और ट्रक में भी ग्रेनेड रख कर उसे तबाह कर दिया गया। कश्मीरी मुजाहिदीन हुर्रियत परस्त वानी और दोनों कश्मीरी बेटियों को साथ लेकर अपने महाज की तरफ चले गए। मैं और जहांगीर भट्ट भी वहां से अपने हाइड आउट की तरफ रवाना हो गए। ये मिशन हमारी तवक्को के खिलाफ बड़ी जल्दी मुकम्मल हो गया था। हाइड आउट में जाकर कमांडो लीडर शेरवान को पूरी रिपोर्ट दी तो वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, मुझे यकीन था हमारे आदमी कैंप पर जरूर अटैक करेंगे। ऐसा ही हुआ। भारतीय हुकूमत को पता ही नहीं कि वो जिस कश्मीरी कौम की हक के खुद इरादियत को कुचलना चाहती है, वो अपने वतन की आज़ादी के लिए 500 साल से जंग लड़ रहे हैं। आखिर फतह कश्मीरियों की होगी। उस रात कश्मीरी मुजाहिद लीडर कमांडो शेरवान ने मेरे साथ एक बड़ी अहम मीटिंग की। इसे मैंने अहम इसलिए कहा कि इस मीटिंग ने मेरी कमांडो और कमांडो स्पाइंग कारगुजारियों की एक ऐसी राह मुतय्यन की जिसने आगे चलकर न सिर्फ कश्मीरियों को जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक को बेपनाह तक़वियत दी, बल्कि भारतीय हाई कमांड के ऐवानों को भी हिला कर रख दिया और सारी दुनिया के ममालिक पर इस हकीकत को वाज़े कर दिया कि हिंदुस्तान की हिंदू हुकूमत ने कश्मीरी मुसलमानों के हक के खुद इरादियत को कुचल कर अपनी फ़ौज की मदद से कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है और कश्मीर का बच्चा बच्चा अपनी आज़ादी के लिए सर पर कफन बांध कर मैदान जहाद में निकल आया है। इस अहम तरीन मीटिंग के बाद मेरी कमांडो स्पाइंग कार्रवाइयों ने कश्मीर में मुतय्यन भारतीय फौजियों के मोराल को जबरदस्त धचका दिया। दूसरी तरफ कश्मीरी मुजाहिदीन का मोराल बुलंद हुआ और उन्हें आज़ादी की मंजिल करीब नजर आने लगी। कहने को तो मैंने बड़ी आसानी से कह दिया, मगर इसके लिए मुझे कैसे कैसे हिम्मत शिकन हालात से वास्ता पड़ा और कैसे कैसे नाजुक तरीन मराहिल से गुजरना पड़ा और कश्मीरी मुजाहिदीन को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, ये आपको आगे चलकर खुद ही मालूम हो जाएगा जब मैं अपने कमांडो स्पाइंग ऑपरेशन को पूरी तफसील के साथ बयान करूंगा। कश्मीरी लीडर कमांडो शेरवान ने इशा की नमाज मेरे साथ ही पढ़ी। इशा की नमाज के बाद हमने खाना खाया और हाइड आउट के तहखाने में आ गए। पड़ाल टेकरी के कमांडो एक्शन से पहले हम इस तहखाने में बैठे थे और कमांडो शेरवान इंडिया के नक्शे पर भारतीय सूबों के बारे में बता रहा था। मेरा ख्याल था कि वो दोबारा वही नक्शा खोलकर इंडिया के मुख्तलिफ सूबों की बाबत तफसीलात से आगाह करेगा, लेकिन उसने नक्शे की बजाय जेब से एक छोटी से सब्ज रंग की पॉकेट बुक निकाली। बड़ी एहतियात से उसके वर्क उल्टा कर कुछ पढ़ता रहा, फिर पॉकेट बुक मेज पर रख दी और आहिस्ता आहिस्ता मेज पर उंगली बजाने लगा। वो किसी गहरी सोच में था। मैं उसके सामने खामोश बैठा था। दीवार की ताक में बैटरी वाली लालटेन रोशन थी। कमांडो शेरवान ने मेज पर कहानियां लटकाई, जरा सा आगे को झुका और मेरी तरफ देखते हुए बोला, जब दुश्मन मुल्क से जंग शुरू हो जाती है तो एक लड़ाई तो अगले मोर्चों पर होती है। ये लड़ाई दोनों मुल्कों की जमीनी फौजें लड़ती हैं। एक लड़ाई मोर्चों के पीछे लड़ी जाती है। ये लड़ाई मोर्चों के पीछे कमांडोज लड़ते हैं। रात के वक्त तरबियत याफ्ता कमांडो पार्टियां अंधेरे में दुश्मन के अगले मोर्चों के बहुत पीछे जान की बाजी लगा कर जाती हैं। उनका काम दुश्मन के एमुनिशन के जखीरों को उड़ाना, बहुत पीछे लगे हैवी और मीडियम तोपखाने की तोपों को तबाह करना और रात के अंधेरे में कैमोफ्लाज करके छुपाए हुए टैंकों को हिट करना और उन्हें बर्बाद करना होता है।
ऐसे मिशन पर गए हुए कमांडो अक्सर जिंदा वापस नहीं आते। वो अपने मुल्क की आबरू बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, लेकिन दुश्मन को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं कि आमने सामने की जंग में 1000 फौजियों की नफरी में इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन एक जंग इससे भी पीछे लड़ी जाती है। ये तीसरी जंग दुश्मन के मुल्क में जाकर उसकी नाक के नीचे बैठकर लड़ी जाती है। ये तीसरी जंग सिपाही यानी जासूस लड़ते हैं। वो दुश्मन के घर में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी जहानत, आला तरबियत और फौलादी आसाब की मदद से दुश्मन की फौजों के ऐसे अहम राज अपने हेडक्वार्टर को पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि जंग का नक्शा ही पलट जाता है और बाज़ औक़ात दुश्मन को शिकस्त भी हो जाती है। छोटे से समावर में से गर्म कश्मीरी कहवा प्यालू में उड़ेलते हुए कमांडर शेरवान थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। वो जो बातें मुझे बता रहा था, मुझे न सिर्फ उन बातों का बखूबी इल्म था, बल्कि कमाल शाह और गुल खान ने मुझे उसकी ट्रेनिंग भी दे रखी थी। कश्मीरी कहवे का एक घूंट पीने के बाद कमांडो शेरवान ने प्याली मेज पर रखी और बोला, मुझे यकीन है कि जो बातें मैंने बयान की हैं उनसे तुम बखूबी वाकिफ हो और मेरी इत्तला के मुताबिक तुम मोर्चों के पीछे रात के अंधेरे में लड़ी जाने वाली कमांडोज की जंग और दुश्मन के मुल्क में उसके घर में बैठकर लड़ी जाने वाली खामोश जंग की ट्रेनिंग भी ले चुके हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैंने इस बात में सर हिलाया। कमांडर शेरवान उठकर तहखाने के कच्चे फर्श पर टहलने लगा, फिर मेज पर आकर बैठ गया और मुझसे मुतवज्जे होकर कच्चे फर्श पर टहलने लगा, फिर मेज पर आकर बैठ गया और मुझसे मुतवज्जे होकर कहने लगा, कश्मीर का बच्चा बच्चा, जवान, बूढ़ा, खवातीन भारतीय काबिज फौज के खिलाफ एक तरह से कमांडो जंग ही लड़ रहा है, क्योंकि हमारी कोई बाकायदा फौज नहीं। हम कश्मीरी मुजाहिद दुश्मन को भी बर्बाद कर रहे हैं और खुद भी शहीद हो रहे हैं। यूं हम अपने खून से आज़ादी के चिराग को रोशन रखे हुए हैं। इसका मुशाहिदा तुम खुद भी कर चुके हो। लेकिन हमारे पास ऐसे तरबियत याफ्ता कमांडोज की तादाद बहुत कम है जो दुश्मन के अकब में जाकर उसको कारी ज़र्ब लगा सकें। फिर भी हमारी कमांडो पार्टियां दुश्मन के फौजी कैंपों और फौजी कैनवायों पर हमले करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाती रहती हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे लोग न होने के बराबर हैं जो दुश्मन के घर में उसकी नाक के नीचे बैठकर उसकी शहरक पर कारी ज़र्ब लगा सकें। जैसा कि तुम जानते हो, ये काम सिपाही यानी तरबियत याफ्ता जासूस करते हैं, और अगर कोई ऐसा जासूस हो जो ट्रेंड कमांडो भी हो तो वो दुश्मन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाता है, उसकी बुनियादों को हिलाकर रख सकता है। कश्मीरी कमांडो शेरवान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। मैं अपनी कहवे की प्याली खाली कर चुका था। कमांडो शेरवान ने अपनी प्याली के ठंडे कहवे का एक घूंट भरा और मेरी तरफ देखकर बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया और प्याली मेज पर रखते हुए बोला, मेरे दोस्त, ये काम तुम कर सकते हो। तुम एक ट्रेंड कमांडो भी हो और एक्सप्लोसिव्स और इंटेलिजेंस के रमूज से भी आगाह हो। तुम नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी जबान पर तुम्हें अबूर हासिल है। तुम जब अंग्रेजी या उर्दू में बात करते हो तो कोई नहीं कह सकता कि तुम कश्मीरी हो, जबकि हमारा कश्मीरी भी अपने लहजे से साफ पहचान लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस खास सलाहियत से भरपूर फायदा उठाते हुए दुश्मन को उसके घर के अंदर जाकर कारी ज़र्ब लगाई जाए। अगरचे ये एक इंतहाई पुरखतर और नाजुक मिशन होगा, कदम कदम पर जान का खतरा होगा, लेकिन तुम्हारे जज्बा हुर्रियत, तुम्हारी काबिलियत और पेशा वराना सलाहियतों को देखते हुए मुझे यकीन है कि तुम नाकाम वापस नहीं आओगे। अब मैंने अपनी जबान खोली और कहा, कमांडर, तुम मुझे ऑर्डर दो, मैं तैयार हूँ। मुझे हुक्म दो कि किस तरह इस्लाम, पाकिस्तान और आज़ादी कश्मीर के जिहाद में काम आ सकता हूँ। मैं इस मकसद के लिए हर कदम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कमांडो लीडर शेरवान ने कहा, बस एक बार फिर यही कहूंगा कि तुम्हें हर कदम पर जान कुर्बान नहीं करनी, तुम्हें हर कदम पर जिंदा रहकर अपने मिशन को पूरा करना है। मैंने कहा, कमांडर, मुझे मेरे मिशन से आगाह किया जाए। मैं तुम्हें अल्लाह के फजल व करम से यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। अब कमांडो लीडर शेरवान ने मेज पर उल्टी रखी हुई पॉकेट बुक उठाई, उसके कागज पर लिखी हुई तहरीर को गौर से पढ़ा और पॉकेट बुक बंद करके मुझसे मुखातिब हुआ। हम कश्मीरी मुजाहिदीन आज़ादी कश्मीर के महाज पर भारतीय फौजों के जुल्म व सितम का पूरे जज्बे और जोश के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हमारी कोई प्रोफेशनल फौज नहीं है, हमारे पास कहीं से असलहा भी नहीं आता। हम दुश्मन के एमुनिशन जखीरों पर शब खून मार कर उसी का असलहा उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मगर मुसीबत यह है कि हमें महदूद वसाइल और महदूद नफरी के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब दुश्मन के पास न जंगी मटेरियल की कमी है, न फौज की नफरी की, हम उसका एक एमुनिशन डिपो उड़ाते हैं तो वो उसकी जगह दूसरा एमुनिशन डिपो बना लेता है। उसकी 2 गन्ने बर्बाद होती हैं, उनकी जगह फौरन नई गन्ने लाकर कमी पूरी कर लेते हैं। हम घात लगाकर उसके 10 फौजी हलाक करते हैं तो उनकी जगह फौरन दूसरे फौजी आ जाते हैं। भारतीय हाई कमांड के पास कश्मीर में मरवाने के लिए फौजों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान की सारी फौज को तुम न तबाह कर सकते हो, न मैं अकेला तबाह कर सकता हूँ। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि उसके दिमाग के आसाबी मरकज पर ज़र्ब लगाई जाए जो कश्मीर के फौजी मामलात को कंट्रोल करता है। उसे बौखला दिया जाए, उसको हर मूवमेंट पर निगाह रखते हुए उसे सबोताज किया जाए। यूं कश्मीर के महाज पर जो भारतीय फौजी डिप्लॉय है उसका मोराल तबाह होगा और आज़ादी कश्मीर की तहरीक को नई ताकत मिलेगी, उसका मोराल मजीद बुलंद होगा। मैंने बड़े गौर से कश्मीरी कमांडर शेरवान की एक एक बात सुनी। मैंने कहा, सर, हुक्म करो, मुझे क्या करना है। मैं उस वक्त एक्टिव कमांडो की हैसियत से बोल रहा था। कमांडो शेरवान कहने लगा, ये मैंने तमहीद बांधी थी, अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ।
तुमने शायद रॉ का नाम सुना है। हकीकत यह है कि मेरे लिए ये बिल्कुल अजनबी नाम था। उन दिनों हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया नया क़याम अमल में आया था। इस खुफिया इदारे ने बैरूनी मुमालिक, खास तौर पर कश्मीर अफेयर्स और पाकिस्तान के बारे में इंतहाई खुफिया रिपोर्टों के जरिए अपने मुल्क के वास्ते अहम कामयाबियां हासिल की थी। इन सारी बातों का इल्म मुझे बाद में हुआ। कमांडो लीडर शेरवान बोला, भारत की मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ खुफिया इदारे हैं। मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो VIP की हिफाजत का जिम्मेदार है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्पेशल ब्रांच CID, ये महकमे वजारत दाखिला के मातहत हैं। इनके अलावा वजारत खजाना के खुफिया इदारे DIR और NIB हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस, मैरीटाइम इंटेलिजेंस और एयर फोर्स इंटेलिजेंस वजारत दिफा के मातहत हैं। लेकिन रॉ का खुफिया इदारा बराह रास्त वजीर आजम इंदिरा गांधी के मातहत है और उसका हेड ऑफिस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में है। रॉ मुखफ़फ़ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। ये खुफिया इदारा भारतीय हुकूमत का आसाबी मरकज है। ये इदारा हुकूमत को हर किस्म की मुल्की और गैर मुल्की सरगर्मियों की रिपोर्टें मुहैया करता है और इन रिपोर्टों की रोशनी में दुश्मन मुल्क के अंदर दहशत गर्दी और तखरीब कारी के प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। कश्मीर में रॉ की सरगर्मियाँ बहुत महदूद हैं क्योंकि यहाँ भारत अपने फौजी यूनिट धड़ाधड़ झोंक रहा है और दहशत गर्दी और तखरीब का सारा काम भारतीय फौज अंजाम दे रही है, जिसका मुकाबला कश्मीरी मुजाहिद अपनी जानों का नजराना देकर हर महाज पर कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीर के हर महाज पर हम मुजाहिदीन का गलबा है और इंडियन फौज को हमारी गोरीला सरगर्मियां जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही हैं। हमारी इतलात के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने रॉ के ताउन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी और तखरीब कारी का एक बड़ा लंबा और खतरनाक प्रोग्राम वज़ा किया है। बल्कि पाकिस्तान कई शहरों में रॉ के भेजे हुए खुफिया दहशत गर्दों ने अपनी तखरीब कारियां शुरू भी कर दी हैं। इससे भारतीय हुकूमत का मकसद पाकिस्तान के सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना है। दूसरे, इंडिया की हुकूमत ये समझ रही है कि पाकिस्तान कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करता है, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। तुमने खुद देख लिया है कि हम अपनी आज़ादी की जंग अपने महदूद वसाइल में रहकर खुद ही लड़ रहे हैं। हमारे पास जो असलहा है वो दुश्मन के एमुनिशन के जखीरों से छीना हुआ असलहा है। हम दुश्मन की गोलियां उसके सीने में उतार रहे हैं। कमांडो शेरवान एक लम्हे के लिए चुप हो गया। मैं भी पूरी तवज्जो से और खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, जो मेरे लिए इंतहाई अहम और बिल्कुल नई है। शेरवान कहने लगा, कश्मीर अफेयर्स के बारे में भारतीय फौजी हाई कमांड को भी यही खुफिया इदारा रॉ ही तमाम तर खुफिया मालूमात फराहम करता है और इनकी मालूमात को सामने रखकर कश्मीर में भारतीय फौजी यूनिट भेजे और डिप्लॉय किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में बैठकर किसी तरह इस खुफिया इदारे तक रसाई हासिल करो और कश्मीर में इंडियन यूनिटों की सरगर्मियों के बारे में हमें पूरी मालूमात दो। ये मालूमात तुम रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए खुफिया कोड में हम तक पहुँचा दोगे। मैंने कमांडो शेरवान से पूछा, क्या मुझे दिल्ली पहुँचकर गुल खान से राब्ता कायम करना होगा? कमांडो शेरवान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, गुल खान ने तुम्हें जितना कुछ बताना था बता चुका है। अब तुम एक दूसरे आदमी से मिलोगे। उस आदमी का ताल्लुक न पाकिस्तान से है और न वो इंडिया का कोई पेशेवर जासूस है। ये शख्स भारत में रहने वाला दूसरे मुसलमानों की तरह एक मुसलमान है। भारत में बसने वाले दूसरे करोड़ों मुसलमानों की तरह उसके सीने में भी इस्लाम की शमा रोशन है और वो मुखालिफ हवाओं के थपेड़ों में भी इस चिराग को रोशन रखे हुए है। तुम उस आदमी को जाकर मिलोगे। ये मर्द मुजाहिद मुझे कहाँ मिलेगा? मेरे इस सवाल के जवाब में कमांडो शेरवान ने मुझे उस भारतीय मुसलमान का नाम, एड्रेस बताया जो मैं जाहिर नहीं करूंगा। उसका फर्जी नाम शेर अली रख लेता हूँ। कमांडो शेरवान ने कहा कि शेर अली अंग्रेजों के जमाने की हिंदुस्तानी फौज की सिग्नल कोर में रह चुका है और सिग्नल्स की खुफिया कोड साइफर और डिसाइफर करने में माहिर है। शेरवान ने कहा कि शेर अली अलीगढ़ हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था और अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उसने साइंस के मजामीन के साथ 11-12 जमातें पास की थी। कमांडो शेरवान ने बताया कि शेर अली ने नई दिल्ली के 12 खंबे के इलाके में एक फैशनेबल रेस्टोरेंट खोल रखा है। उसने मुझे रेस्टोरेंट का नाम भी बताया जो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। तुम दिल्ली जाकर शेर अली से मिलोगे, वो तुम्हें खुद बताएगा कि तुम्हें क्या करना है और वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। जिस रोज तुम यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होगे, मैं उसे खुफिया कोड में वायरलेस पर तुम्हारा नाम और तुम्हारी रवानगी की इत्तला कर दूंगा। तुम्हें एक खास खुफिया जुमला भी बताऊंगा जो तुम उसके आगे जाकर बोलोगे, जिसके जवाब में वो भी एक खास जुमला बोलेगा। बहरहाल अभी तुम्हें मीर साहब के पास कम से कम 3 माह रहकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों, उनके कल्चर और ख़ास तौर पर हिंदू देवमाला और संस्कृत ज़बान के बारे में इब्तदाई तालीम हासिल करनी होगी। मैं कल ही तुम्हें मीर साहब के पास पहुंचा दूंगा। मुझे बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा जा रहा था। ये काम ऐसा था कि जहां हर कदम पर खतरात का सामना था। कमांडो एक्शन में तो एक खास मिशन पर जाना होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 घंटों में मुकम्मल हो जाता है। आदमी या कामयाब लौटता है या फिर शहीद हो जाता है। लेकिन जो मिशन कमांडो शेरवान मेरे सुपुर्द कर रहा था वो एक मुसलसल कमांडो स्पाइंग मिशन था। इस मिशन में दुश्मन के घर में जाकर बैठ जाना था और वापस नहीं आना था।
اور وہاں اپنے آپ کو زندہ رکھ کر دشمن کے ناپاک عزائم کے بارے میں مکمل خفیہ رپورٹیں حاصل کر کے انہیں مجاہدین تک پہنچانا تھا۔ یہ کمانڈو اسپائنگ کا مشن حقیقت میں میرے مزاج کے عین مطابق تھا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اسلام اور جہاد کشمیر کے لیے کوئی ایسا کام کروں جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو اور جس میں مجھے جان کی بازی لگانی پڑے۔ میں خوش تھا کہ آخر مجھے میری مرضی کا ایک مشن مل گیا ہے۔ اس طرح میں اسلام، پاکستان اور جہاد کشمیر کو تقویت پہنچانے کے لیے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتا ہوں۔